that will be arranged by CSC. So this will be almost like the Olympiad. In Olympiad, you are doing science, engineering, science, mathematics. But here it is creative. Creative thing, how to make an animation. We have a lot of stories in India, Panchatantra tales, for example. Out of every one, you can make many movies. But animation is very expensive. You need a lot of people. But it can also give a lot of jobs to our children. Not only can we create for our stories, using our stories, Ramayana, Mahabharata, and हर इतिहास में बहुत ज़्यादा है, side stories, inner stories, and so on and so forth. Can make, I mean, it's unbelievable. Okay, all that we can train our children to create, compete. It's going to, they will get the certificate, and they will do very well, because our children are very creative. Unfortunately, we don't have an outlet for that. We only make them mug up. Here is something, in fact, I should play that, I'll play that after this session is over. There was a 4th grade child. She was only 11-years old. She created an animation. I'm going to play that after this session is over. Okay? Now Dr. Devaji is ready. Let me give a brief introduction to Dr. Devaji. He is going to, I mean, it's an amazing thing that we are doing under the guidance of Dr. Devaji, Dr. Rupal, who's not here. I believe that we can completely eradicate malnutrition in India without spending a single paisa. Without spending a single paisa. In fact, we will be saving a lot of money in the form of powder milk. Powder milk is very expensive, formula milk. Okay, that is what Dr. Devaji is going to talk about. It's an incredible story. I'm not going to steal the thunder. So let Dr. Devaji speak. I want every one of you to listen to it. It may be useful in your family, because you will see that I know many people who started, who just sat for somebody else, they started using it for themselves. अपने के लिए यूज कर सकते हैं. आप ध्यान से सुन लीजिए. मेरा नाम देवजी है. मैं स्पोकन ट्यूटोरियल्स की जो प्रक्रिया है उससे बहुत अभी जुड़ा हूँ. मतलब एक दो साल हो गया, शायद उससे कम है. आर एबल टू, मेरी आवाज आ रही है आपको? बढ़ जाएगी, चिंता मत कीजिए, बढ़ जाएगी थोड़ा. I forgot to tell, he is an MBBS doctor and he has also done a master's degree. He has also done a master's degree in public health from Tata Institute of Social Studies. Yeah. And he has more than 10 years of experience working for UNICEF in Bihar. His home state is Bangalore, Karnataka, but he spent more than 10 years in Bihar. And after that, okay, he'll tell. So, I think they're excited. Yeah. And the front light, which is this particular light, which is, I don't know whether it is, it's very much needed. ठीक. तो बिहार से कितने लोग हैं भाई इधर? अच्छा है, ठीक है. महाराष्ट्र से कितने लोग हैं? हाथ. जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. कर्नाटक से कितने लोग हैं?
कर्नाटक से कोई है क्या? है, एक है। कहाँ से है आप? रायचूर। ओके। आंध्र प्रदेश से कितने लोग हैं? यूपी से कितने लोग हैं? ठीक। सो सम थिंग, बिकॉज ये जो राज्य मैंने बात किया, इन राज्यों में मेरा काम कुछ न कुछ मेरा हुआ है। खास करके जो पिछले 10 साल में जो मैं बिहार में था, अलग अलग संस्थाओं से, एक्चुअली यूनिसेफ में से तो मेरा महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, बिहार में यूनिसेफ नहीं था। अलग अलग संस्थाओं से साथ मैंने काम किया है। जब कन्नन सर मुझे बोले कि ये ऐसा एक प्रक्रिया है, तो आधा घंटा आप दे दीजिए, तो दोनों आप करिए। एक अगर आपको दिखेगा वो तो वो देखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई चिंता नहीं है, आप सुन लीजिए। मुझे सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, सो 2 साल पहले जब हम हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल्स न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे थे, तब हमको लग रहा था कि ये मामला थोड़ा पेचीदा है। पेचीदा इसलिए है क्योंकि जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको, बहुत साल से हम पोषण वगैरह 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 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ बन नहीं रहा है मामला उधर, ऐसा हमको लग रहा था। जब कन्नन सर ने मुझे बोला कि ये ऐसा ऐसा एक VLE कॉन्सेप्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने काम में अपने गांव को जोड़ दिया हूँ, खुद का गांव को, जिस गांव से मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स निकल गए थे 40-50 साल पहले, उस गांव को मैं जुड़ा हूँ। और जो भी है, पहला काम मुझे करना पड़ता है कि अपने गांव वालों को बोध करना कि ऐसा कुछ है क्या। सो ये लोग हैं मेरे गांव के, और गांव के बगल वाले लोगों के, इनसे मैंने बात किया, VLE क्या चीज़ है, क्या कर रहे हो तुम लोग। खास करके जो CSC कर्नाटक का YouTube चैनल है, बहुत बढ़िया लगा मुझे। और उनमें से मैं 3 लोगों को चुना हूँ, गिरिजम्मा, यशोदा और मंजुला। इन्होंने जो बात किया, मुझे लगा कि हाँ, ये मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि VLE क्या करता है और VLE का दायरा क्या है। यहाँ आके आज सुबह में जब त्यागी सर का बात मैंने सुना, भाई इधर तो खेल लाखों में हो रहा है और कुछ लोग करोड़ों में इसको लेके गए हैं, तो ये तो अलग, मतलब एक अलग दुनिया में आज देखने को मिला। लेकिन एक कॉमन है जो VLE में मैंने देखा, सुना, और मुझे पढ़ना पड़ा, VLE क्या है, CSC क्या है। ग्रामवन के बारे में मैं जानता था, लेकिन ग्रामवन के पीछे एक बहुत बड़ी एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा मुझे पता नहीं था। और उसमें देखते देखते मुझे लगा कि हाँ, इधर टेलीमेडिसिन भी है, और कर्नाटक में बहुत लोग टेली लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे जो है, एक आधार कार्ड या राशन कार्ड या कुछ ऐसे प्रक्रिया से जो शुरू हुआ मामला, अभी ऐसा जा रहा है कि ये टेली लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे बात किए कि जैसे उन्होंने रजिस्टर किया, तुरंत वहाँ फोन आया एक लॉयर का। मतलब ये अभूतपूर्व एक जहाँ पे होता है ना, एक आदमी फंसा रहता है कहीं पे और उसको देखते रहता है, वो फंसा रहता है, मतलब वो एकदम हताश नहीं रहता है। जैसे पटनायक सर ने बताया, नेवर लूज, नेवर फील, बी पॉजिटिव, ऐसा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि अरे मेरे हाथ पैर सब बांधे हुए हैं और क्या करे तो क्या करे। तो टेली लॉ के बारे में मैंने बात सुना तो मुझे लगा करे यार, ये पहुंची हुई चीज़ है। VLE जो है, इसका कॉन्सेप्ट जो है, ये पहुंची हुई है। मतलब यहाँ लॉ और लॉ पॉइंट के बारे में अगर लॉयर तुमको बात करेगा तो एक मुझे तो बहुत, मतलब एक अंदर से
लगता है ना एक अंदर से यू आर शेकन, हाँ, यू आर शेकन कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि पोषण एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैगी वाला भी पोषण बात करता है, टपरी में आपका बिस्किट वाला है 5 रुपए का 2 रुपए का, वो भी पोषण के बारे में बात करता है। गरीबी है, गरीब का पोषण, अमीर है, अमीर का पोषण, बुजुर्ग है, बुजुर्ग का पोषण, बच्चा है, बच्चे का पोषण, कोई ताकत बढ़ाने के लिए पोषण करता है, कोई मसल्स बढ़ाने के लिए पोषण करता है। तो ये ऐसी एक प्रक्रिया मतलब मामला है जो हर जगह है, हर जगह है। लेकिन अगर पूछेंगे आप किसी से कि आपने क्या खाया, वो तो बताएगा कि क्या खाया, लेकिन उसमें क्या था, जो तुमने खाया उसमें क्या था और क्यों खाया, पता नहीं। करीबन 2 साल पहले जो डॉक्टर रूपल की बात सर किए, उनसे हमारा मुलाकात हुआ। एक वर्कशॉप में हम थे और उस दौरान हमको लगा कि जो मैं सोच रहा हूं कि मैं जानता हूं, वैसा तो मामला है नहीं। बहुत सारे चीज़ मैं जानता नहीं, और कुछ प्रश्नों को पूछना बनता है कि भाई आपने खाया तो क्या खाया, कितना खाया, क्यों खाया, और आपने हफ्ते में एक बार आपने नॉनवेज खाया, क्या खाया नॉनवेज में, फिश खाया, क्यों खाया। धीरे 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 इस तरह से मैं लोगों से जब बात करता हूं, अपने आप पोषण और उसके चलते जो आम मर्दा की जिंदगी है उसको जोड़ने की मैं कोशिश करता हूं। हमेशा ये मैंने पाया था पिछले 10 साल में कि जो पोषण क्षेत्र है वो आम मर्दा की जिंदगी से हटके है। मतलब मैं पोषण तज्ञ हूं, मैं अलग एक जगह पे बैठता हूं। अगर आप बीमार हैं तो आपका एक डॉक्टर होगा, आपका डॉक्टर बोलेगा कि आपको डायबिटीज है, हाँ, और आप फलाना डाइटिशियन से जाके बात कीजिए, वो आपको एडवाइस करेंगे। ये मुझे कभी सही नहीं लगा है। अगर जो खाते हैं उससे हमारा कोई सेहत बनता है, या खाते हैं उससे हमारा बीमारी बनता है, तो मैं जो खाता हूं उसको अगर मैं सही खाऊंगा तो बीमारी रिवर्स भी होना चाहिए। तो इस मामले में जब मैं इन लोगों से बात किया कि ये लोग, मतलब अजीब मुझे लगता है कि जब मैं इनसे बात किया और जो आज सुन रहा हूं, एक कॉमन फैक्टर है वीएलई में। कॉमन फैक्टर ये है कि सर्विस, वहां पे कर्नाटक में शायद ये सीएससी का एक स्लोगन होगा, लर्न मोर अर्न मोर। बोल रहे थे कर्नाटक के लोग लर्न मोर अर्न मोर, लेकिन मुझे क्या समझ में आया कि ये लोग सीख तो रहे हैं और उससे आमदनी भी उनका बन रहा है, लेकिन अंदर से एक ऐसी भावना है इनमें जो सर्व मोर उनको बोल रहा है। मतलब बहुत सारे लोग मैं ऐसे देखा है, बात किया है, देखा मतलब वीडियो में, अभी पहली बार मैं देख रहा हूं इतने वीएलई को। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो समाज है, जो इर्द गिर्द का समाज है, उसमें कंट्रीब्यूट करने का एक बहुत बड़ा मतलब सपना आपके दिमाग में है और दिल में है। ये कुछ ZBNF जो जीरो बजट नेचुरल फार्मर है, उसमें भी एक आदमी यहाँ पे है मेरे गांव में जो उसका एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है। उसको लगा के उसका क्या करना है, कैसा करना है, वो सब कर रहा है। जहां पे आप त्यागी जी हैं, त्यागी जी का बुरा मत मानिएगा, जहां पे त्यागी जी का अचीवमेंट खत्म होता है, मेरा मेजरमेंट शुरू होता है।
तो ये वाला है, ये आपके घर में है? हाँ, सबके घर में है? हैं? इसको क्या बोलते हैं? टेलर टेप। हाँ, तो ये टेलरिंग टेप, मेजरिंग टेप है, 1 मीटर का टेप है, और इसे बहुत कुछ नापा जा सकता है ना? है? तो उसमें से एक है जो यहां नापा गया है? सो ये बिजनेस मॉडल आप बोलते हैं ना, तो रियली का बिजनेस मॉडल मुझे, जो जनरल एमबीबीएस खत्म करके जो जनरल प्रैक्टिस शुरू करता है ना आदमी, मुझे पता नहीं था कि जनरल अपना डॉक्टर करने के बाद जब बैठूंगा इधर क्लिनिक में, अरे ये तो बिजनेस है। मतलब इधर 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 कैसा है, पेशेंट कैसा रहता है, वो मेरे तुम्हारे साथ नेगोशिएट करता है। हम क्या 15 मिनट हमसे बात करता है और बोलता है कि आपने सिर्फ बीपी देखा, 10 ही रुपए लो, है? तो आपने ज्यादा कुछ किया नहीं। सो you know, it's very interesting to me that a large amount of these small kind of micro enterprises are really, मतलब वो सच में एक एंटरप्राइज है जहाँ पे जब मैं 2-3 साल का मेरा जनरल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस बोलता है कि यहाँ पे आपका आमदनी और खर्चा बराबर है। धीरे 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 वो बढ़ता है और एक जगह पकड़ता है जहाँ पे suddenly it will grow into a different realm. 75 एक नंबर है। मैं पूछूंगा आपको 75 क्या है? 80 एक नंबर है, हैं? 80 एक नंबर है। ये कभी पोषण के डॉक्टर्स के जब मिले हो 75-80, ऐसा किसी ने आपसे बात किया नहीं होगा। क्यों बोल रहा हूं? मैंने खुद बात नहीं किया है। हा? और आप सुने हैं नाटापन? हा? बच्चा क्या नाटा? सो नाटापन आप जानते हैं क्या? हा? देखिए, आप में से आप 300 लोग हैं इधर, आपका एक भी चेहरा ऐसा नहीं है। नाटापन मतलब, हाँ मैं जानता हूं। पतला, पतले को जानते हैं? पतले को जानते हैं? मोटे को तो जानते होंगे। हाँ, सबसे बड़ा है उनका ये रहता है, दबदबा रहता है। पोषण अभियान आप सुने हैं क्या? हाँ, कितने लोग सुने हैं पोषण अभियान? 20 आंगनवाड़ी में चलता है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, पूरा का पूरा पोषण अभियान खड़ा हुआ है नाटापन के ऊपर, और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन हम लोग जानते नहीं है नाटापन क्या होता। 75 एक ऐसा आंकड़ा है, 75 सेंटीमीटर्स। ये if you are a lady, if you measure, it has to be 75 centimeters or less. हाँ, ये मेजरमेंट भी बहुत बड़ा चीज है। ऐसा होता है ना, यहाँ पे जैसे आप जब कोई नहीं देखता रहता, आप फैले रहते हो आराम से। कोई देखा तो तुरंत अंदर गया। लिफ्ट वाला अटैचमेंट आता है ना, लिफ्ट वाला एक अटैचमेंट आता है, एक लड़की घुसती है, 2 मर्द ऐसे अगल बगल में, एकदम पतला हो जाता है। 85 is the measurement for men. 85 is the measurement for men, irrespective of their general. बहुत हट्टा कट्टा ऐसा खली जैसा आदमी है तो तब हम थोड़ा हम इधर उधर कर सकते हैं। बाय एंड लार्ज ये वेस्ट सरकमफ्रेंस जो है, ये उसका आंकड़ा है। हाँ?
15 इंटू 30 कितना होएगा? है 450 होएगा पक्का? फ्रीज करें? ये याद रखिएगा, ये लास्ट में आएगा, ये इसी प्रक्रिया में लास्ट में आएगा। हाँ, सो बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो हमको पता नहीं। ये एक मेजरमेंट है जिससे बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है, ये हमको मालूम नहीं है ये क्यों है। हाँ, क्यों ये मेजरमेंट बोल रहा है हमको ये मालूम नहीं। पोषण मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग मायना है। कोई बोलता है फलाना खाएगा, कोई बोलता है इसको नहीं खाना है, कोई बोलता है आप अंडा खाओ, कोई बोलता है आप अंडा मत खाओ। अलग अलग लोगों को, अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग मायना पोषण के है। स्थूल रूप में पोषण का क्या हो सकता है? आप पोषण आपका कम है या पोषण आपका ज्यादा है। इतना कम है कि आप बीमार हैं ऐसा लग रहे हैं, या इतना ज्यादा है कि आप बीमार लग रहे हैं। दोनों तरफ से ये ऐसा ऐसा ऑसिलेट होता रहता है। जनरली एक आदमी का हाइट और उसका वेट मेजर किया जाता है। जो ओपीडी लेवल में या कहीं घर में एक छोटा सा आप इसको इसी टेप को ऐसा टांग दीजिएगा तो ये अपना हाइट भी मेजर कर देगा। तो बहुत बड़ी काम की चीज है। अगर नहीं है तो खरीदिए। हाँ, रेशियो, यही दो मेजरमेंट से आपका दूसरा मेजरमेंट्स आपका मिलता है। ये रेशियो क्या है? अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं वेस्ट भी देखो और हिप्स भी, हिप सरकमफ्रेंस भी देखो। अगर आपका वेस्ट आपका हिप से ज्यादा है तो आपको प्रॉब्लम है, सही में प्रॉब्लम है। Why do we not know this? इतना सिंपल, सरल, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या मैं जो बोल रहा हूं? बिल्कुल नहीं है। आपके मन में होगा, मेरे मन में कंफ्यूजन। So there is no way, this is not known. अगर बोलेगा अभी कोई इधर से उधर से कहीं आपको मिलता है, बट वी डोंट नो। सो व्हाट आई एम मेकिंग ए केस हियर इज, जो मैं बोल रहा हूं कुछ इस तरीके का है। अगर हम देखेंगे न्यूट्रिशन को तो एक जीवन लाइफ साइकिल अप्रोच, जीवन चक्र अप्रोच हम मानते हैं इसको। छोटा बच्चा से लेके मरने तक पोषण हमारा साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो इसी चक्कर में हम क्या करते हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स, सो बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, थोड़े बड़े बच्चे, 5 to 9 year old, एडोलेसेंस, टीनेज, वो उस ग्रुप के बच्चे, बाद में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में 15 से 48 तक जो मेन एंड वुमेन हैं इस एज ग्रुप में, और उसके बाद में हम जीरियाट्रिक न्यूट्रिशन, इसका भी हम बात कर सकते हैं। और 2-3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस ये हैं कि प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन इज एन इंपॉर्टेंट, स्लाइटली थोड़ा अलग से, लेकिन उसमें भी पोषण बहुत महत्वपूर्ण लगता है। तो कुछ ऐसे आपको दिखेंगे, ये 15 से 19 तक सारे गर्ल्स का होगा यहां पे। हाँ, सारे गर्ल्स का होगा। 15 के 19 तक आप देखेंगे तो लाल ही लाल है इंडिया पूरा। ये लाल का मतलब क्या है? यहां पे पतलापन, लो बीएमआई जो बोलते हैं उसको पतलापन भी हम बोल सकते हैं, 40 से 60% तक पहुंच गया है इंडिया में, बिटवीन 15 to 19 ईयर्स।
और इसी एज ग्रुप में ब्लड शुगर देखिए कितना हाई है, डायबिटीज है लोगों में। एक ग्लूकोमीटर अगर आपके पास है तो आप टेस्ट कर सकते हैं शुगर है कि नहीं है। छोटा सा एक ग्लूकोमीटर कोई भी कर सकता है ना, घर में जो भी डायबिटिक वाला है वो अपने आप करेगा। सो दैट कैन बी ए सर्विस दैट कैन बी ऑफर्ड। और यहां पे ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन मतलब डायबिटीज पक्का है, ऐसे लोग 10 से 19%, करीबन 15% बच्चे लोग हमारे देश में हैं। अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, देखिए कितना गाढ़ा कलर है पूरा प्रदेश में, पूरा देश में कितना है वो 30% से ज्यादा है। हमारे यहां ये 30% जो है ये एडोलेसेंट गर्ल्स में है, मतलब 15 से 19 जिनका उम्र है उनमें से 30% अनीमिया है। त्यागी जी बोल रहे थे सेगमेंटेशन, सो आई एम टेकिंग यू थ्रू सेगमेंटेशन। समाज के अलग अलग तबके में, अलग अलग एज ग्रुप में क्या सिचुएशन है। और वेदर वो ओवरवेट हो, ओवरवेट भी उतना ही है। जितने लोग अंडरवेट हैं, कम वजन है, वह इतने ही लोग ओवरवेट भी हैं। मतलब हमारे समाज में दो तरफा मार चल रहा है, एक तरफ अल्प पोषण है और एक तरफ ओवर ओबेसिटी है। ये प्रेग्नेंट वुमेन में, गर्भवती महिला में अनीमिया का दर है। लाल का मतलब इधर 60% से ऊपर है, मतलब 10 में से 6 औरतें आपको अनीमिक होंगी। देयर कैन बी सॉल्यूशन फॉर देम, एंड दैट सॉल्यूशंस कैन बी टेकन बाय VLEs। एक तरफ हमारे प्रदेश में बच्चों का डिलीवरी घर में होता था पहले, अभी कम है। सरकारी व्यवस्था, यंत्रण बहुत सुदृढ़ से काम करते हुए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया है? इट्स ऑलमोस्ट लाइक 80-90%। ऑन एन एवरेज नागालैंड और मेघालय थोड़ा कम लगता है, बट ऑन एन एवरेज इट इज ऑन द 90s। लेकिन उसी इंस्टीट्यूशन में अगर बच्चा है, उसको तुरंत स्तनपान करना चाहिए। जो बच्चा पैदा होता है इंस्टीट्यूशन में पैदा हो रहा है, लेकिन वो बच्चे को तुरंत स्तनपान करना चाहिए, लेकिन स्तनपान होता नहीं। इट इज लेस देन 30% ऑन एन एवरेज। अगर आप देखेंगे तो 30 से 40% बच्चे ऐसे हैं जहाँ पे कुछ प्रदेशों में तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, गुजरात और अलग अलग राज्यों, कुछ और राज्यों में ये 30% से कम है। या 30% से कम है। सो अगर हम देखेंगे कि बच्चे का नाटापन और अंडरवेट और वेस्टिंग का, ये हमारे देश का डेटा दिख रहा है, सब कुछ इट्स ऑल रेड। अगर स्टंटिंग आपका 20% से ज्यादा होगा तो ये एक इमरजेंसी है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिचुएशन ग्रेव है इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स, बट गवर्नमेंट कैनॉट डू एवरीथिंग।
and nutrition related knowledge and skills need not be the primary responsibility of health department and Anganwadi department. That is why I found that, I understood that पोषण एक कॉमन सर्विस है, एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स कैन एंड शुड हैव न्यूट्रिशन एज कॉमन सर्विस. सो अगर हम कॉमन सर्विस न्यूट्रिशन को बनाना चाहते हैं तो क्या क्या चाहिए? करेक्ट नॉलेज, जानकारी चाहिए. वो जानकारी इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. अगर कुछ स्किल्स आपको देना है तो वो डू इट योरसेल्फ जैसा होना चाहिए. अपने आप उसको करने के लिए सक्षम लोग होते हैं, और अगर दो तीन बार ट्राई करेंगे वो हो जाना चाहिए. स्किल्स शुड बी इजीली एक्सप्लेनेबल, डूएबल रेसिपीज, वैल्यू एड टू द फैमिलीज एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द कंज्यूमर होना चाहिए. यहां पे हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल एंटर होता है. ये एक बहुत अच्छा डायग्राम है जो मैं बार बार देखता हूं और प्रभावित होता हूं. पूरा स्पोकन ट्यूटोरियल का क्रक्स जो है वो इस डायग्राम में है, जहां पे एक बिगिनर स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करता है. अगर वो अंडरस्टैंड नहीं होता है तो आगे नहीं बात बढ़ता है. सो बिजनेस मॉडल्स में भी एक ऐसा चीज हो सकता है, न्यूट्रिशन रिलेटेड बिजनेस मॉडल्स में भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो देन इट्स नॉट अ बिजनेस मॉडल. हर एक हमारा स्पोकन ट्यूटोरियल एक 10 मिनट का वीडियो है, जो अंत में जो औरत है उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक वीडियो है, एंड इट इज डब्ड इन टू ऑल द 22 लैंग्वेजेस. So it is having 9 core concepts. What are those? ये हर एक डॉक्टर का, नर्स का ऐसा बात नहीं है. आप क्या खाते हैं और कितना खाते हैं, उसका न्यूट्रिशन कंटेंट क्या है. टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है, प्रोटीन का महत्व क्या है, क्रॉस क्रेडल होल्ड ये क्या है. और आप इस टॉक के बाद आपको एक पर्चा मिलेगा जहां पे आपको लैचिंग के बारे में पता चल जाएगा. स्टैंडर्ड्स क्या है ग्रोथ के, एक्सप्रेशन एंड स्टोरेज. जो माताएं काम पे जाती हैं, अगर स्तनपान उनको करना है तो स्तनपान को कैसे एक्सप्रेस किया जाए और कैसे उसको स्टोर किया जाए, इसके बारे में जानकारी. जब बच्चा 6 महीना कंप्लीट होता है तो उस 6 महीना जब कंप्लीट होता है तो पूरक आहार देने की क्या प्रक्रिया हो सकती है, पूरक आहार देने का क्या क्या हो सकता है, और इस पूरक आहार में प्रोटीन पाउडर घर में आप कैसे बना सकते हैं. अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारी यंत्रणों ने इसका प्रयोग किया है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. इतने सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, करीबन 90-91 ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, और 10-15 और जुड़ेंगे. और ये ट्यूटोरियल जो है वो जिस सेगमेंट को चाहिए उसके हिसाब से बने हुए. मैटरनल न्यूट्रिशन के वीडियोस हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के वीडियोस हैं, स्तनपान के वीडियोस हैं, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पूरक आहार पद्धति के बारे में वीडियोस हैं, जनरल न्यूट्रिशन के बारे में वीडियोस हैं जिसमें अडल्ट न्यूट्रिशन भी आता है, रेसिपीज इसके बारे में वीडियोस हैं, किस तरह से रेसिपी बनाए जाए, और नवजात शिशु का संरक्षण कार्यक्रम उसके बारे में भी ये वीडियोस हैं. पहले ये मैं कुछ आपको दिखाता हूं कैसा ये स्पोकन ट्यूटोरियल जमीन पे उतरता है. तो ये पहले एक फेस टू फेस ट्रेनिंग होता है और उसके बाद में तुरंत वो क्रियान्वित
जो ट्रेनिंग लिया हुआ है वो काम पे उतरते हैं, और काम पे उतरते ही एक व्हाट्सएप ग्रुप का, जो पटनायक सर ने बोला कि व्हाट्सएप वो 10 बजे खुलते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी ऑफ देम द एंटायर स्पोकन हेल्थ ट्यूटोरियल का जो प्रोजेक्ट है उसका टेक्निकल एडवाइस ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप में होता है। और ये लोग हमको भेजते हैं कि ऐसा ऐसा मेरा बच्चे का जुड़ाव हुआ स्तन से, वो ठीक है कि नहीं है, वो जानकारी उसको चाहिए, वो तुरंत हमको वीडियो भेजते हैं, हम उसको चेक करते हैं और बोलते हैं कि इसको फलाना तरीके से आप मॉडिफाई कीजिए और आपका बच्चे को स्तनपान मिल जाएगा अच्छी तरीके से। सोशल मीडिया के अलग अलग यूज हम करते हैं, और शायद ये लास्ट स्लाइड है। मैंने कहा था ना क्या 15x30 क्या है, 450 है ना। इतना दिन लोग ये सोच रहा है कि 15 ग्राम पर डे पहला 3 महीने में यही नॉर्मल है। इम्पैक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, इम्पैक्ट ये है, अगर बच्चे को जिस तरीके से हम दूध पीते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रेडल होल्ड, दिस इज कॉल्ड एज क्रेडल होल्ड। और इसी होल्ड को अगर हम बदलेंगे, हाँ, बच्चे को इस तरह से पकड़ेंगे, इसको हम क्रॉस क्रेडल होल्ड बोलते हैं। क्रॉस क्रेडल होल्ड करने से बच्चे का मुंह का स्तन से जुड़ाव बहुत अच्छा होता है, और बच्चा पूरी तरीके से दूध पी सकता है। पूरी तरीके का दूध मतलब जो अगला दूध और पीछा वाला गाढ़ा वाला दूध है वो भी वो पिएगा। कहां 15 ग्राम पर डे, और इसमें हम देख रहे हैं कि करीबन 65% ऑफ द बेबीज इन द इंटरवेंशन एरिया आर अबाउट 30 ग्राम्स। मतलब 15 ग्राम आप सोच के चल रहे हैं ये नॉर्मल है, लेकिन वो 15 नहीं है, वो 30 है। 15 को 30 किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। और ये सीखने के लिए, इसके लिए आप डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, और इसके लिए आप औरत होना भी जरूरी नहीं है। एनीबडी कैन लर्न दिस टेक्निक एंड एनीबडी कैन ब्रिंग these principles into action. एक डॉक्टर है, ये पेशेंट के बेड पे बैठ के उसको सिखा रहा है कैसा इसको पिलाना है। ये भी डॉक्टर्स हैं अलग अलग प्रदेशों से, जो सीखते हैं वो सिखाते भी हैं। और ये डॉक्टर रूपल है, पिक्चर वहां पे ठीक तरह से नहीं आ रहा है, और मैंने खास करके चुन के ये फोटो डाला हुआ है क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि स्तनपान के बारे में हम क्या बात करेंगे, बच्चों के पोषण के बारे में हम क्या बात करेंगे, गर्भवती महिला के पोषण के बारे में हम क्या बात करेंगे, ये मर्दों में रहता है। अगर ये हट गया तो आपके पास तो पूरा अरीना खुला हुआ। हम क्या दे सकते हैं, हम क्या दे रहे हैं अभी, हम फेस टू फेस आपको ट्रेन कर सकते हैं, 7 दिन का मेंटरिंग हम दे सकते हैं, टेक्निकल एडवाइस हमारे साथ मिल सकता है। आप जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, कर पाएंगे, करेंगे, उसका क्वालिटी हम इंश्योर कर सकते हैं। और जो अगर आप इसको एक बिजनेस मॉडल में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, कॉस्टिंग स्ट्रक्चर जो अच्छी तरीके से आपने डिस्कस किया, उतना हम यहाँ पे कॉस्टिंग के लिए उतरे नहीं है अभी, लेकिन वी आर कैपेबल ऑफ गिविंग यू वेरी फाइन कॉस्टिंग मेजर्स ऑल्सो।
कि अगर आप करेंगे तो इसको करेंगे तो क्या करेंगे। सो थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर। मेरे लिए एक बहुत बड़ा मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा उपलब्धि मानता हूं कि मैंने पहली बार एक ऐसे ग्रुप को बात किया है जिसका दूर दूर से बच्चों का पोषण से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो इसमें हम उस ताल्लुकात को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड, विच यू विल बी, बिकॉज जो भी मैंने ग्राफ देखा वो तुम्हारा मार्केट है। सब लाल वाला जो है ना, सब मार्केट है, कंज्यूमर्स ही कंज्यूमर है। वहां से वहां को कैसे लेके जाना है वो हम सोच सकते हैं।